اب ہم گفتگو جو کریں گے بقیہ حصہ موقف لینے کی کوشش کریں گے جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین ہیں مقصود احمد صاحب، ان سے بات کریں گے. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پاکستان کا یہ واحد ادارہ ہے PPSC جس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے لوگوں کا، اور لوگ جو ہے اپلائی کرتے ہیں کینڈیڈیٹس. اب اس پہ بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. سر کیا میسج جاتا ہے لوگوں کو؟ آپ بطور چیئرمین کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جائز مطالبات کر رہے ہیں یا کوئی پلان کر کے یہ سب کچھ کیا جا کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. میرے اپنے خیال میں تو یہ کینڈیڈیٹس نہیں ہیں جو مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کچھ اور لوگ ہیں جن کے اپنے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے جس کی وجہ سے وہ PPSC کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گا. میں صرف یہ بتاؤں گا کہ PPSC ایک بہت بڑا پرانا ادارہ ہے، ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے. اس سسٹم کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز اتنے زیادہ ہیں کہ یہاں کوئی چاہے بھی تو کسی کی نہ مدد کر سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی وجہ سے پورے پنجاب کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کا اس ادارے پہ اعتماد ہے. یہ جتنے محکمے جو یہاں پہ PPSC پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ان کا اس پہ اعتماد ہے، اور یہ اعتماد سالوں سے قائم ہے. بالکل ایسے ہی. یہ چند ایک لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے میرا نہیں خیال اس اعتماد کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، نہ پہنچنی چاہیے، اور یہ اعتماد قائم رہنا چاہیے. سر اعتماد قائم رہنا چاہیے. اب اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب بھر سے وہ لوگ بلا رہے ہیں، فردر بھی کالز چل رہی ہیں کہ آپ آئیں PPSC کے باہر اکٹھے ہوں، احتجاج کریں. سڑک روڈ بلاکس ہو رہے ہیں، عام شہری بھی پریشان ہیں. تو کوئی ایسا راستہ نہیں نکل سکتا کہ آپ ان کے ساتھ جا کے گفتگو کر لیں اور یا کوئی آپ کا نمائندہ چلے جائے تاکہ یہ مسئلہ سورٹ آؤٹ ہو؟ ایک جو میسج آ رہا ہے میڈیا کے تھرو کہ اس میں جو ہے وہ کرپشن کے الزام آ رہے ہیں، اس میں پیپر لیکیج کے جو ہے وہ الزامات آ رہے ہیں. ابھی تحصیلدار کی پوسٹ کے اوپر جو ہے بڑے ہمارے اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی پیپر لیک آؤٹ ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں. اب لوگ آفر کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ لوگ کال سنا رہے ہیں کہ دیکھیں جی 40 لاکھ کی سیٹ لے لیں، 20 لاکھ کی آپ پیپر دے دیتے ہیں. تو اس طرح کی کیوں چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو واٹس ایپ پہ کالز کرتے ہیں؟ کیا آپ کے ادارے کے لوگ اس میں شامل ہیں یا کوئی آپ کے ادارے کو بدنام کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال میرے ادارے کے لوگ اس میں شامل ہیں. کون ہے یہ میں تو گیس نہیں کر سکتا. نیچرلی آپ جرنلسٹ ہیں، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں یہ کون لوگ ہیں. لیکن علم تو سب کو ہوتا ہے. تحصیلدار کا پیپر ہونے جا رہا ہے، ایگزامینیشن کا شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہوا ہے، وہ تو ہر بندے کو پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی اس کو بہانہ بنا کے کوئی بھی کسی کو بھی کال کر سکتا ہے. میری تو درخواست ہوگی تمام کینڈیڈیٹس کے ان لوگوں کے جھانسے میں نہ آئے. ان کے پاس نہ کوئی پیپر ہوتا ہے، نہ کوئی انفارمیشن ہوتی ہے. یہ صرف مس لیڈ کر کے اپنا پیسہ بنانا چاہتے ہیں. ابھی جو آپ نے پیپر کی بات کی ہے، یہ لیک پتہ نہیں کیسے ہو گیا. ابھی تو پیپر بنا بھی نہیں ہے اس کا. تحصیلدار کا پیپر بنے نہیں ہے ابھی تک بن کے فائنل نہیں ہوا. نیچرلی پیپر ہم 3-4 جگہ سے بنواتے ہیں، اس کے بعد اس کو فائنل کرتے ہیں. کبھی اس کو مس میچ کرتے ہیں، کبھی کچھ اس کے ایک پیپر سلیکٹ کرتے ہیں. وہ پروسیس سے گزرا ہی نہیں ابھی تک. ٹھیک ہے. تو لیک کیسے ہو گیا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی نے وہ لیک پیپر شیئر نہیں کیا ابھی تک. ٹھیک ہے. یہ صرف باتیں ہیں کہ پیپر لیک ہو گیا، بٹ پیپر لے کے بھی دکھائیں بھی تو صحیح کون سا پیپر لیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. سر واٹس ایپ پہ انہوں نے ہمیں دکھایا، کچھ فون کالز ہمیں سنائی جس میں وہ کوئی شخص کہہ رہا ہے جی ہمیں اتنے پیسے دیں، آپ آدھا گھنٹہ پہلے سینٹر کے باہر آ جائیں اور ہم آپ کا جو ہے آنسر شیٹ دے دیں گے تو آپ وہی جا کے آنسر لگا دیں گے. کچھ لوگوں نے واٹس ایپ کو ہمیں ٹائم دکھایا جی پیپر اگر 9 بجے شروع ہوتا ہے تو 8:30 بجے واٹس ایپ پہ پیپر ایک آنسر شیٹ آ گئی ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ PPSC کے اندر کے لوگ ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں وہ جو کہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا. تو اس کو آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں کہ موسٹلی جو الزام لگتا ہے وہ آپ کے جو سیکرٹری صاحب ہیں ان پہ بھی لگتا ہے الزام، ان کی کوئی وائس نوٹ وہ سنواتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا وائس نوٹ وہ سیکرٹری صاحب کیا یا کوئی اور ہے. اور دوسرا کلریکل اسٹاف کے اوپر بھی بڑا الزام آتا ہے. نہیں، وہ الزام ہے نا جی. بات یہ ہے کہ الزام تو کوئی بھی کسی پہ بھی لگا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے الزام کو نا. اس کے ثبوت کے طور پہ کوئی کچھ پیش نہیں کرتا. ٹیلی فون کالز تو کوئی بندہ کسی کو بھی کر سکتا ہے. آپ اپنے آپ کو PPSC کا ظاہر کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، کوئی اور کر سکتا ہے، اور کسی کو بھی کال کر سکتے ہیں آپ. تو یہ ان چیزوں کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کریڈیبلٹی اسٹیبلش رہے. میرا اپنا خیال ہے کہ جب پیپر ہوتا ہے اور یہ لوگ جو پیپر بیچ رہے ہوتے ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ غلط
खबरें फैला रहे हैं और गलत चीज़ें शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। आपके कोई जाती दुश्मन है जो आपके खिलाफ इस तरह इल्जामात लगा रहे हैं? मेरा किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। तो इल्जाम क्यों लगाते हैं आप पे? कहते हैं जी चेयरमैन साहब रिटायर्ड होने लगे हैं तो बस वो कुछ करना चाह रहे हैं। अच्छा, वो फिर साबित कर दें कैसे करना चाह रहे हैं चेयरमैन साहब। अगर पूरे 3 साल नहीं करे तो आखिरी 3 हफ्ते में चेयरमैन साहब क्या करना चाह रहे हैं? आपकी बेटी के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं कि आपकी बेटी ने पेपर जो है वो उसमें दिया है और चेयरमैन साहब का बड़ा हाथ है, ये हकीकत क्या है? मेरी किसी बेटी ने कोई पेपर नहीं दिया। एक बेटी ने कोई दिया था, आज से 6 महीने पहले वो पास होके ऊपर इंटरव्यू तक आई नहीं थी। अच्छा। उसके बाद मेरी बेटी ने कोई पेपर नहीं दिया किसी ने आज तक। इंटरव्यू तक आई, पहुंची नहीं वो? पहुंची। आपने बतौर चेयरमैन सिफारिश नहीं की उनके साथ? हाँ, ये मेरे से गलती हो गई। पाकिस्तान में कल्चर है ना, सियासतदान भी सिफारिश करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी सिफारिश करते हैं, एक कल्चर है। तो सर आप फिर ने अपनी बेटी के लिए स्पेशली सिफारिश नहीं की? नहीं, सिफारिश नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आप सब लोगों को सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर चेयरमैन कोई भी हो वो किसी को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है। सिस्टम इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है और इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि किसी का कोई ना फ़ायदा कर सकता है ना नुकसान कर सकता है। यहाँ पर कोई फायदा नुकसान नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सर, जो मेरिट पे आएगा वही सिलेक्ट होगा। बच्चे जो इल्ज़ाम लगाते हैं जी, ये देखें जी व्हाट्सएप पेपर, आप उस तमाम एग्जाम को डिनाई करते हैं, उससे पीपीएससी से कोई ताल्लुक नहीं है किसी किस्म का? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। सर क्लरिकली जो स्टाफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है उसके ऊपर क्या पीपीएससी ने कोई ऐसे क्लर्क को फारिग भी किया है जो उस इल्ज़ाम की मद में आ जाते हैं? देखें, क्लर्कों के पास होते ही नहीं है पेपर। सर क्लर्क ऑफर तो करते हैं ना जी, 20 लाख ले लें हम आपको कुछ ना कुछ करवा देंगे। ऑफर को तो मतलब कैसे आप साबित करेंगे कि वो आपने कुछ क्लियर कोई क्लर्क फारिग किए पीपीएससी से तारीख में? देखें, आप फिर उसी तरफ ले जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि उनके पास होता ही कुछ नहीं है। ठीक है। अगर वो झूठ किसी को कह रहे हैं तो झूठ का तो कोई सबूत नहीं होता ना। अब ये बच्चे बाहर खड़े रहे, सारी रात बैठे रहे, धरना कहते हैं दे देंगे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आपके इदारे के बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, वो लगे हुए सेक्रेटरी साहब उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको भी हम यही कह रहे हैं कि आप कोई प्रूफ तो लेके आए ना। वो वॉइस कॉल वॉइस नोट सुना देते हैं, तस्वीरें दिखा देते हैं, देखें जी ये व्हाट्सएप की तस्वीरें हैं, ये पेपर लीक हुआ है। उस प्रूफ को आप मानेंगे या उसको मजीद फर्दर इन्वेस्टिगेट? व्हाट्सएप पे उन पेपरों की तस्वीरें होती हैं जो हो चुके हुए होते हैं, जो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके होते हैं। जो होने वाला है और लेट्स से कि अगले जुमे जो पेपर होना है उसके या तो आज दिखाएं मुझे व्हाट्सएप के ये पेपर लीक हो गया है, बिल्कुल ठीक है, फिर तो मैं मानूंगा। अगर उस पेपर होने के 4 दिन बाद वो करते हैं तो वो तो कोई बंदा भी शेयर कर सकता है उसको। आप समझते हैं ये जेन्युइन कैंडिडेट है या कोई किसी प्लानिंग के तहत कोई लोग ग्रोह इकट्ठा हो रहा है कोई? मैं इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा, कोई कमेंट नहीं करेंगे इस बारे में? तो स्टूडेंट को क्या मशवरा देते हैं अगर कोई पंजाब भर से आते हैं, ट्रैवल करके एहतजाज में शामिल होना चाह रहे हैं या अभी जो कर रहे हैं, उनको कोई मैसेज दे दें ताकि उनको चेयरमैन साहब की तरफ से मैसेज पहुंच जाए? मेरा एक ही मशवरा होगा कि अपने ऊपर यकीन रखें और इदारे के ऊपर यकीन रखें। अगर आप मेरिट पे आते हैं कोई बंदा आपकी सिलेक्शन को रोक नहीं सकता, अगर आप नहीं आते हैं तो कोई बंदा आपको सिलेक्ट कर नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। सर क्विकली मुझे थोड़ा सा ना क्राइटेरिया बता दें जो आपने प्रेजेंटेशन भी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि ज़रा क्या क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट के? एक इब्हाम है कि शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है। जो ट्रांसपेरेंसी आप दावा करते हैं पीपीएससी, उसका क्राइटेरिया मुझे बता दें ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले कि भाई ये क्राइटेरिया इसको फॉलो करना है और किसी की कॉल रिसीव नहीं करनी। क्राइटेरिया पीपीएससी का नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हर जॉब के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का। वो उसको फुलफिल करते हैं तो एलिजिबल होते हैं। ठीक है। एलिजिबल होने के बाद आगे कंपटीशन है, कोई अच्छा कैंडिडेट होगा, कोई थोड़ा कमज़ोर होगा, जो अच्छा होगा सिलेक्ट हो जाएगा, कमज़ोर होगा उसको चांस नहीं मिलेगा। सर स्टूडेंट को गाइडलाइन चाहिए, एक स्टूडेंट को क्राइटेरिया चाहिए कि वो कैसे जो है वो अपनी वो करे, अप्लाई करे किसी भी वैकेंसी के लिए, उसका क्राइटेरिया पूछ रहा हूँ। आपकी वेबसाइट पे तो हर चीज़ अपडेटेड है, मैंने आपकी वेबसाइट स्टडी की है, उसके ऊपर आप दिन ब दिन नोटिसेस भी लगाते रहते हैं, जो भी अपडेट आती है। लेकिन स्टूडेंट जो है, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, मास्टर का स्टूडेंट है, वो पीपीएससी में अपीयर होना चाहता है, किन किन मराहल से गुजरना चाहता है, ये मुझे थोड़ी डिटेल बता दें। नहीं, मराहल उसको अप्लाई करता है ऑनलाइन, आपको पता है ऑनलाइन सिस्टम है, उसके बाद टेस्ट में अपीयर होता है। टेस्ट में अगर पास हो जाता है तो इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाता है, इंटरव्यू में पास होता है, दोनों में मेरिट बनता है, अगर मेरिट पे आ जाएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सर एक ये इल्ज़ाम आता है कि केसेस अदालत में भी लोग गए, लाहौर हाई कोर्ट में भी गए, दीगर अदारों में भी गए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनसे हमारी बात हुई है कि वो कहते हैं हम केस जीत के सीट हमने हासिल कर ली। तो इसमें क्या रेशो है? अगर आपको अदालत बुलाती है, अदारे मुख्तलिफ बुलाते हैं इन्वेस्टिगेशन के अदारे, तो किस हद तक रेशो जो है वो स्टूडेंट के हक में है और किस हद तक आपके हक में है, और ये क्यों नौबत आती है कि स्टूडेंट उस जाता है आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन देता है?
देखिए, जब भी कोई स्टूडेंट अगर कामयाब नहीं होता है और उसको शक है कि जी मेरे साथ जाती हुई है, तो उसके लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं। ठीक है। वो जाता है, उसका हक है। हमारा काम है अपना केस डिफेंड करना। और मैंने अभी आपको डाटा प्रेजेंट किया कि 2016 से लेके 2020 तक हम 95 to 97% केसेस जीतते हैं PPSC। ठीक है। उसकी वजह यही है कि ऑनरेबल कोर्ट जब बुलाती है, हम उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम बताते हैं और हमारे हक़ में फ़ैसला होता है। 3 से 4% ज़रूर कैंडिडेट्स के हक़ में फ़ैसला होता है। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती है। कहीं वो उनको देना चाहते हैं अलाउंस गलती का, जो कि हम नहीं देते हैं बिकॉज हम स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हैं। इंटरप्रिटेशन की गलती होती है जिसकी वजह से उनके हक़ में फ़ैसला होता है। तो जो पैनल, ये भी इल्ज़ाम आता है कि जो इंटरव्यू का पैनल आप कॉल करते हैं, शायद उन लोगों की सिफारिश भी होती है, किसी के पास कोई नंबर होते हैं, किसी के पास कोई नंबर होते हैं, तो नंबर की जो क्राइटेरिया है वो स्टूडेंट को समझा दे ज़रा कि भाई जो पैनल के लोग हैं वो किस तरह काम करते हैं, किसी की सिफारिश करते हैं या नहीं कर सकते, या उनके पास इख्तियार है या नहीं। नहीं, पैनल के पास सिर्फ ये क्वेश्चन करने का और क्वेश्चन की आंसर के बुनियाद पे कैंडिडेट को जज करने का इख्तियार है। ठीक है। वो जब तीनों या चारों मेंबर जो पैनल के होते हैं वो कंसेंसस के साथ डिसाइड करते हैं कि ये कैंडिडेट को कितने नंबर मिलने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और उसी हिसाब से जो इदारे का रिप्रेजेंटेटिव वो भी नंबर देता है और एक्सपर्ट्स भी नंबर देते हैं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल को मैनिपुलेशन उसके अंदर हो सकती है, क्योंकि तीनों चारों ने अल्टीमेटली उस पैनल को जज करना है। वो जो भी उसको जज करते हैं वो उनका फैसला है। सर, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या वजह है, आपका 3 साल का टेन्योर पूरा होने लगा है, गालबन 23-24 जो है वो डेट को आ रहा है, तो आखिरी जो 20 दिन है उसमें इल्ज़ामात की भरमार हो गई, आपके ऑफिस का घराव कर लिया स्टूडेंट के, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ आपके टेन्योर में, इसकी क्या वजह है? मुझे इसकी वजह समझ नहीं आती है, ये तो वही बता सकते हैं क्या हुआ है उनको। लेकिन आप समझते नहीं कि आपकी इस सीट के ऊपर जो है एक पूरा क्वेश्चनर स्टूडेंट ने बनाया है, कि क्वेश्चन उठाया है कि जो चेयरमैन साहब है वो जाते जाते ये काम करने जा रहे हैं। वो उनका प्रोगेटिव है, वो उनकी समझ है, वो उनसे पूछा जाना चाहिए। लास्ट पे जो यंगस्टर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? एक ही मैसेज है कि अपने आप पे भरोसा रखें और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप डिज़र्व करते हैं तो कोई आपसे आपका हक ले सकता है। बहुत शुक्रिया जनाब मकसूद अहमद साहब, चेयरमैन PPSC मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने मैसेज दिया कि जो आप मेहनत करते हैं, आपको जो डिज़र्व करते हैं आपको वो ज़रूर मिलेगा। और जो स्टूडेंट जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उनके वाले से उन्होंने बात की कि अगर उनके पास कुछ सबूत है, कोई पेपर ऐसा कोई लीक हुआ है, तो वो आए प्रेजेंट करें और ये केस को देखेंगे और उसका सलूशन निकालेंगे। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।